Hi friends, today we will going to study about notice writing. Before going on the how to write notice, we have to know what is notice. Notice is an important piece of information has to be given or transmit to a large group of people. So I can write here. What is notice? Notice is an important piece of information for a larger group of people. Here this is nothing but important piece of information. Means in notice only we can define or we can write the important information. Okay. This is nothing but displayed or transmit or transferring the information to a larger group of people. Means this is nothing but a single notice can be defined for many public or many people. So it should be some format. So before going to format, we have to clarify the key points of the notice. Of notice writing. Before write notice, first of all, we have to follow these things. There is so many key points we have to follow. First one is it must be short and compact. The notice should always precise. It should be write only the important information. No need to ask about how are you, is it everything okay, where are you going. Unnecessary things we are not writing in notice. So notice is very short and compact. Second thing is in this notice we are writing the formal and polite language. Formal and polite language. Formal and polite language means here we are only write the formal sentence because it may be followed by the older public, respectable persons, students. So that's why we should be write always a formal letter. Here we are using indirect language or passive voice. Never we write direct or active voice. Always you have to write passive voice or indirect language. Don't use first or second person. Means pronoun. The pronoun on the second and first person pronoun we are not using. That means we are not using I, we, you. Never write any word just like I, we, you because they are first and second person pronoun. We are using only third person pronoun. Substitutional difference between date of issuing notice and date of your events. Means नोटिस हम आज दे रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आज मैं नोटिस दे रही हूँ कि आगे कल्चरल फंक्शन होने वाला है, आगे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज होने वाला है, आगे डिबेट कंपटीशन होने वाला है, आगे ऐसे कंपटीशन. जो भी हम नोटिस दे रहे हैं, कोई लीगल नोटिस हो या कोई इलीगल नोटिस या कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल नोटिस हो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इवेंट होने से पहले नोटिस दिया जाता है. इस वजह से नोटिस जब इवेंट होगा और जिस दिन नोटिस लिख रहे हो दोनों के अंदर कम से कम गैप होना चाहिए. मतलब डेट दोनों डेट डिफरेंट होना चाहिए. इसलिए मैं लिखी सबस्टिट्यूशनल डिफरेंस बिटवीन. ओके. देन नेक्स्ट वन इज देयर शुड बी अ वर्ड लिमिट. इफ यू आर राइटिंग नोटिस इट शुड बी ऑलवेज विदिन 50 वर्ड्स. विदिन 50 वर्ड्स. अगर आपको बच्चा ऐसा आइडिया है कि नोटिस 4 मार्क के 4 मार्क्स के लिए आप 2 पेज 3 पेज लिखोगे तो उल्टा आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. नोटिस ऑलवेज शुड बी विदिन 50 वर्ड्स. ऑलवेज राइट एज प्रिसाइज एज यू कैन. देन आफ्टर द नोटिस, completion of the notice, put the notice always in a box. Make a box to cover or to fill the notice. It is a good habit to draw a box outside of notice. After that we will discuss the format of your notice. Nothing but the format of notice. In this notice, first of all, we have to write the name of the organization. अगर आपके क्वेश्चन में कोई ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिया है तो आप वो लिख सकते हैं. अगर डिफाइन नहीं किया है, बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो तो उसमें ध्यान से आप इसमें कोई नाम नहीं लिखना, एक्स वाई जेड डिफाइन करना. अगर कोई बोर्ड में ऑर्गेनाइजेशन के नेम दिया है वो नाम लिखना, अगर नहीं दिया है तो एक्स वाई जेड लिखना है. After that, it should be in the middle, and after that
write notice in the middle of the, like this, maybe this, like this, middle, NOTICE. Remember one thing, first one you have to write name of the organization. Second thing, you have to leave a gap. Second thing, a line, gap. Okay. Third thing, write middle notice. Okay. That must be in a capital letter or bold letter. Okay. Fourth one, the date. The date must be on the left side of the notice, and it first write down the date, then month, then year. Okay. Then write the title. Below the date and month, write the title. After writing title, leave one line. Okay. 5 and 6th number is your line. Okay. 7th number is your body of the country. What you want to give information to other people. बाकी के जो लोगों को आप क्या information देना चाहते हो, क्या transmit करना चाहते हो, you have to write here within a 50 words. Okay. After that, again leave a blank space or line. Then write down, this one is your name, who is writing this notice, his name. After that, designation or post, if possible, then write your contact number. This is nothing but 9th step of notice. And 10th number is make a box, that is nothing but 10th number. Okay. So we know that this is easy. We can write the organization name. We can write like this, notice in the middle of the page. After that, date is also easy. And title हम लोग क्वेश्चन से लिख सकते हैं. Then what we can write in body. Body part में हमें क्या लिखना है? That is the main things. I will discuss here. We will discuss the body or content of the notice. First of all, the body or content should be in a proper beginning. It should be a proper beginning. Then, why you are writing this notice? Event or purpose. It's the reason why you are writing. For whom means for whom you are writing. It may be a group of students, it may be a group of teachers, for whom you are writing. Then when you are writing, date and time. For the event, when it will occur. कौन से तारीख को ये इवेंट आप करने वाले हो, उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा. नेक्स्ट, कहाँ आप करने वाले हो, प्लेस, जगह. आफ्टर दैट, व्हाट टू डू. इसमें आप क्या कर सकते हो, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्शन जो है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट को या इंटरेस्टेड ग्रुप को हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देना है. दैट शुड बी व्हाट टू डू. देन डेडलाइन. तो बिफोर दैट इवेंट, the members should be, interested members should be enrolled in it. So we have to write the last date or the limited period, time period. Then proper ending. The notice should be ended in a proper manner. So before going on how to write, I want to tell you one thing, that the proper beginning and proper ending always in a same format, maintain in a same format. Remember the two lines. After that, those things you can write from question. चलो मैं आज आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ. सेम टू सेम आपको याद रखना है. खाली आपको अगर कोई इवेंट चेंज करते हैं तो उस अकॉर्डिंग ऑन दैट आप इसे चेंज कर सकते हैं. क्वेश्चन, यू आर रजनी एंड राजन. आप इनमें से कोई एक हो. हेड गर्ल और बॉय. अगर रजनी लिख रहे हो गर्ल, राजन लिख रहे हो बॉय, of XYZ convent school. Your school is going to organize an inter-school singing competition. Write a notice for your notice board inviting interested students. मैं क्या बोली थी, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना दो मैं. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है, जो नीचे हम लोग लिख रहे थे. पॉइंट नंबर 9 में आएगा रजनी एंड राजन. पोस्ट में आएगा हेड बॉय और गर्ल. ओके. फिर यहाँ रीजन दिया है, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन. हमें इतना याद रखना है. इसके थ्रू हम लोग को अभी नोटिस लिखना है. क्या है, कौन नोटिस लिख रहे, राजन या रजनी लिख रहे.
तो बॉय, हेड बॉय, रजनी होगा तो हेड गर्ल। उसके साथ द पर्पस इज योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। क्या लिखा था बेटा? कौन लिख रहे? राजन और रजनी लिख रहे। पर्पस क्या था? इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। और कौन से स्कूल से लिख रहे? XYZ कन्वेंट स्कूल। तो बीच में मैं लिखी XYZ कन्वेंट स्कूल, फिर मिडिल में कैपिटल लेटर में नोटिस लिख दी। आफ्टर दैट एक लाइन में यहाँ छोड़ी, देन 17 जुलाई 2020। डेट आपको इस फॉर्मेट में ही लिखना है, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। आफ्टर दैट राइट द टाइटल। क्यों मैं ये नोटिस लिख रही हूँ? उसके टाइटल है इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। देन लीव ए लाइन, यहाँ एक लाइन आपको छोड़ना है, यहाँ एक लाइन छोड़ना है, डेट से पहले एक लाइन छोड़ना है, टाइटल के बाद एक लाइन छोड़ना है। आफ्टर दैट द बिगिनिंग शुड बी लाइक दिस, notice is hereby given that, notice is hereby given that, okay, this is nothing but the beginning. After beginning, क्वेश्चन से मैं आपको बोली थी योर स्कूल इज गोइंग टू, तो योर यहाँ क्या हो जाएगा? आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑन 30 जुलाई 2020 थर्सडे इन स्कूल ऑडिटोरियम। तो इसकी मतलब ये यहाँ से लेके मैं क्वेश्चन से देख देख के लिखती, ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। यहाँ तक मैं क्वेश्चन से देख के लिखी। तो इवेंट को एक पर्टिकुलर डेट में हो रहा होगा, इसीलिए मैं यहाँ डेट डाली ऑन 30 जुलाई 2020। ऑन दैट डे थर्सडे इन स्कूल ऑडिटोरियम। कहाँ और कब होगा वो जरूरी है आपको लिखने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं टाइमिंग भी दी। द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 10 AM इन द मॉर्निंग एंड विल लास्ट टिल 6 PM। 6 बजे तक ये इवेंट चलेगा, सुबह 10 से 6 बजे तक। ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको लिखने का, लेकिन आपको ये डेट, डे और जगह, वेयर वी आर गोइंग टू हेल्ड द फंक्शन, यू शुड बी राइट। आफ्टर दैट द एंड शुड बी इन ए प्रॉपर मैनर। द एंड इज द interested students may contact the undersigned for further information. Again I am repeating, the interested students may contact the undersigned for further information. जहाँ मैं ये अंडरलाइन की वो बिगनिंग ऑलवेज सेम, एंडिंग ऑलवेज सेम रखना है। मिडिल में ये जहाँ मैं जैसे वेब जैसे सेव की, इट शुड बी फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से आपको लिखना है। बाकी डेट आपको ये डेट से मिनिमम 7 या 8 दिन के बाद के डेट डालना है, कोई भी डेट। मैं आज 17 का लिख रही हूँ तो मैं 30 जुलाई का डेट डाली। ये 30 जुलाई जो तारीख, जो बार होगा, मतलब जो डे होगा वो डे ही लिखना है। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन में राजन या रजनी दिया था, इनमें से कोई एक ही नाम आपको लेना है। रजनी तो हेड गर्ल, अगर राजन लिखते तो हेड बॉय। ओके, अगर आपको नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो? अगर ये मुझे नहीं लिखना है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ दिस इज टू इन्फॉर्म, यहाँ मैं लिख रही हूँ, मैं इरेज कर देती हूँ, फिर लिख रही हूँ। नोटिस राइटिंग 4 मार्क्स की होती है, बट इसके स्टार्टिंग और एंडिंग वो हमें एक प्रॉपर मैनर में लिखेंगे तो मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हो। इसलिए मैं लिखी हूँ, बिगिनिंग आप इस तरह से कर सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अदरवाइज मैं प्रीफर करती हूँ नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट, नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। जब इसको आप एंड करो, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। आगे के कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए जो नीचे साइन किए हैं उनकी आप जानकारी ले सकते हो। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको नोटिस राइटिंग अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन को प्रेस करिए। अगर आपके कोई डिमांड है किसी और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, देन कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक की जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।